व्हाट आर द 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। ध्यान से देखना, एक सेकंड, दिखे ना मुझे। 4 sectors in an economy, 4 sectors in an economy: household, individuals, firm, producers। इन दोनों का नाम तो हमने सुना। 2 और सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है गवर्नमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान से देखेंगे। 4 सेक्टर्स हैं। Household, it includes consumers of goods and services and also the owners of factors of production. Factor services कौन प्रोवाइड कर रहा है? Household ही तो कर रहा है, तो हो गए owners of factors of production. In that capacity they provide the factor services to the firms. तो household में ये भी होता है, providing of factor services और consumption of goods and services। तो consumers भी हैं और owners of factors of production भी हैं। They supply factors like land, labor, capital and entrepreneurship and receive income in return in the form of rent, wages, interest and profit respectively। कोई भी डाउट? हाउसहोल्ड क्लियर है कौन कौन है? प्रोड्यूसर, firm, producing sector. It includes all the producing firms in the economy. क्या करते हैं वो? To produce goods and services, the firm hires factors of production from the household. Yes or no? In return, they give the factor payments. But why do they hire these services? For completing the production process. For completing the production process, they produce goods and services. Though to produce goods and services, they hire factors of production. Households consume these goods and services to satisfy their wants and produce goods to their wants, and firms produce goods to earn profit. कह रहे household क्यों consume करते हैं? To satisfy their wants. Consumer equilibrium कब attain होता था? Maximization of satisfaction. They want to satisfy their wants. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अटेन होता था? व्हेन दे मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। प्रोड्यूसर क्यों बना रहा है गुड्स एंड सर्विसेज? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हाउसहोल्ड क्लियर, फर्म्स क्लियर। गवर्नमेंट का काम क्या है? एक, एज अ वेलफेयर एजेंसी, कह रहे इकोनॉमी को रन करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन। As a producer, it produces goods and services in public sector enterprises. Some factors of production are owned by the government. We are operating in a mixed economy. A capitalist economy is one in which all the factors of production are owned by private individuals. A socialist economy is one where all the factors or majority of the factors of production are owned by the government. A mixed economy is one in which some factors are owned by the private sector and some are owned by the government. We are operating in a mixed economy. Point. कुछ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है, कुछ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि रेलवेज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, उसका कुछ हमने प्राइवेटाइज कर दिया आईआरसीटीसी में, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ इट इज स्टिल विद द गवर्नमेंट। मेट्रो गवर्नमेंट, तो सर्विस ही तो प्रोवाइड हो रही है, वो कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं है, बट पब्लिक वेलफेयर का पार्ट है। पब्लिक वेलफेयर होता है पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, दैट इज प्योर पब्लिक वेलफेयर। Metro is a service provided by the government, which may be provided by private individuals as well, companies as well. But government decided to enter into that industry so that those services can be provided at cheap rates, affordable rates. So government can operate as a welfare provider, welfare agency, and as a service provider as well, as a producer as well. Government दोनों capacity में operate कर सकता है। फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। बाहर की कंट्रीज, उनके साथ क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उनके साथ जो ट्रेड हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ से सामान भेजा बाहर, एक्सपोर्ट, बाहर से सामान यहाँ आया,
imports. This sector includes transactions with the rest of the world. It is involved in export and import of goods and services and flow of capital between the domestic. Import and export of goods and services भी हो सकता है, flow of capital, loans borrow करे हमने बाहर से, remittances आई बाहर से, कि मतलब बाहर आपका आपके पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. आपका बच्चा बाहर काम कर रहा है, वहां से पैसे भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस. कभी फॉरेन असिस्टेंस आती है कि कोई नेचुरल कैलामिटी होगी तो बाहर से movement of funds between one country and another country. The movement of funds may be due to business reasons or other reasons as well. बस पैसों की मूवमेंट हो रही है. न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम चारों सेक्टर्स यूज होंगे. हाउस होल्ड भी होगा, फर्म भी एग्जिस्ट करती होगी, गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती होगी, और फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता होगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त थियोरेटिकली जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर रहे हैं, तो हमारी अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है? वी आर ऑपरेटिंग इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी. वाइल स्टडिंग, हमारे कोर्स में सर्कुलर फ्लो सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर का है, तो हमारी अजम्पशन है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स. सर्कुलर फ्लो 3 सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है, सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है. ऑब्वियसली हम वी आर ऑपरेटिंग इन 4 सेक्टर्स इन रियलिटी, एंड देयर इज स्टिल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट थियोरेटिकली आपके कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी. तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है तो क्या अजम्पशन है? लास्ट 2 सेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना तो गवर्नमेंट है ना एक्सटर्नल सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं है. A very hypothetical assumption, but yes, that is how it is. क्योंकि अनरियलिस्टिक हो गई ना बात कि गवर्नमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करती, एक्सटर्नल सेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करता, 2 सेक्टर में नहीं करता. 3 सेक्टर में गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं करता. 4 सेक्टर में सब एग्जिस्ट करते हैं. तो इन रियलिटी तो कॉन्सेप्ट वो है पूरा, बट स्कूल लेवल पे सिर्फ 2 सेक्टर. कॉलेज में जाएंगे तो 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है. बट जैसे कि मैंने बताया कि पता होना चाहिए कि 3 सेक्टर होता तो क्या होता? गवर्नमेंट आ जाती. गवर्नमेंट के आने से क्या होता? गवर्नमेंट के आने से टैक्सेशन भी होता और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती, सब्सिडीज भी होती, तो कुछ नई ट्रांजैक्शन आ जाती. अगर एक्सटर्नल सेक्टर आ जाता तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता, ट्रांसफर्स होते, लोन्स एंड लाइक कैपिटल ट्रांसफर्स होते, फॉरेन असिस्टेंस होती. हमारे कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, सर्कुलर फ्लो. 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्लियर. और 2 सेक्टर में कौन से 2 होंगे? सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स. अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी.